अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हैरी पॉटर और ये है निम्बस 2000 और हम जा रहे हैं पाकिस्तान की सैर को। अठारह के बाद जो हमारा IMF का प्रोग्राम हुआ उससे कीमतें बढ़ी। हम फूड सब्सिडी देंगे, आटे पे देंगे, चीनी पे देंगे, घी पे देंगे और दालों पे देंगे। जी नाज़रीन, अभी मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ इस वक्त यूरोप के अंदर और मेरे पीछे आप देख रहे हैं पीली पीली घास उगी हुई है और आसमान देखें गुलाबी रंग का हो गया है और ये लिखा हुआ है आई लव एम्स्टरडैम। और दरख्त देखें कितने खूबसूरत, मेरे पीछे खजूरों के दरख्त हैं, ह्यूज दरख्त खजूरों के हैं और सिचुएशन बड़ी अच्छी है यहाँ पर। ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है, महंगाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो सोच रहे होगे की गल्लां कर रहे हैं, झूठ बोली जा रहे हैं, ये झूठ ही चल रहे हैं आजकल। आप किसी से बात करें ना, स्पेशली हुकूमती नुमाइंदे से, वो शुरू करता है यार क्या हो गया है, कौन सी क़यामत आ गई है, कौन सा महंगाई इतनी हो गई है, सारी दुनिया पैसे कमा तो रही है, सारा कुछ हो तो रहा, लेकिन जब सड़क पे जाते हैं, लोगों से मिलते हैं तो आपकी दुनिया बदल जाती है। आप कहते हैं यार हो ही रहा है। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस कबूतर को देख रहा हूँ जो बिल्ली को देख के आंखें बंद करी बैठा है। उसको ये है कि जी मैंने आंखें बंद कर ली तो बिल्ली गायब हो जाएगी। तो मैं कबूतर को बताना चाहता हूँ कि जानी मुश्किल हालात हैं, ऐवी मुंडी मुंडी लत जानी है, तो आंखें खोलो। आंखें खोलने के लिए आज का प्रोग्राम करने लगे और आपको बताने लगे हैं कि ये चूठम चूट चुताली इन्होंने लगाई क्या हुई है। हमारे साथ रहें। जी ना, मेरे कुछ बुजुर्ग मेरे साथ नहीं, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा अच्छा है। मेरे कुछ टीनेजर दोस्त मेरे साथ मौजूद हैं, अपनी टीनेज में हैं और ये हमसे बात करेंगे और हम इनसे पूछते हैं कि महंगाई तो बिल्कुल नहीं है, कितनी अमीर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये हैरी पॉटर का रूम है, इस पे बैठ के ये उड़ते हैं, तो ये मत समझिएगा झाड़ू हमने झाड़ू देने के लिए रखा हुआ है, ये हैरी पॉटर वाला है। इस पे बैठ के हम उड़ते हैं और वो हम खेलते हैं, जो वो बॉल्स नहीं खेलता था, तो हम अपने छोटे दो भाइयों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਜਨਾਬ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉੜਦੇ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਘਾਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਲਾਣਾ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਝੂਠ ਫਰੇਬ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਭੁੱਖੇ ਵੈਸੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ੌਕੀਆ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਚਾਚੂ। ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕੀਆ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉੱਡਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा शौक ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਟਾ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਚੂ? ਆਟਾ ਸਮੇਂ में 65-70 ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਨੀ ਕਿਹੜੀ 110-20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਪੈਟਰੋਲ 123, ਕੋਈ ਮਸਲਾ 24 ਰੁਪਏ। ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕਮਰਾ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਣ 35,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਖਬਰ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ 35 ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ 40 ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ 40 ਚੱਲ ਰਿਹਾ? 40 ਚੱਲਣ ਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇਹ ਦੱਸੋ 40,000 ਕਿਸਾ ਚੱਲਦਾ? 40 ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਟੀਵੀ ਜਦੋਂ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੱਲੇ ਜਵਾਨੀ ਟੀਨੇਜ ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ, 16-17 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਝੂਠ ਲਬੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਘਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ 100 300 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, 320 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਬੁਲੰਦਤਰੀਨ ਸਤਾ ਤੇ। ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਕਿੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਡਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁਣ ਕੀ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖਾਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੁਝ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਖਾਏਗਾ ਨਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ। ਆਟਾ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ 65 ਰੁਪਏ 80 ਰੁਪਏ ਚੱਕੀ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। 80 ਰੁਪਏ 70-80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੇ, ਚੌਲ 120-30 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੇ ਪਏ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ 300 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗਾਜਰਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਉੱਥੇ 500 ਰੁਪਏ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਾਲਰ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੋਟਾ ਮਾਲ ਕਮਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਆ, 4 ਬੱਚੇ ਨੇ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਉਹ 700 ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿ ਘਿਓ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿ ਚੀਨੀ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿ ਪੱਤੀ ਲਿਆਏਗਾ ਕਿ ਆਟਾ ਲਿਆਏਗਾ, ਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਕੂਲੇ ਪੜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏਗਾ। 700 ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸੋ ਤੇਰਾ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਿੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ 4-5 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ। ਏਸੀ ਲਾਏ ਹੋਣਗੇ ਘਰ? ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਪੱਖਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਦੋ ਕੁ। ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ? ਲਾਏਗਾ ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ ਲਾਏਗਾ। ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਪੱਖਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੈਸ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ 14-1500। ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਕੀ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਉਹ ਰੱਬ ਕੋਈ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦਾ।
ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਸਾੜ ਦਿਓ, ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਕਵੇ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਸਾੜੋ। ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ 70 ਤੋਂ 125 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 18 ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਚੂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਭਾਗ ਕੇ ਉਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਵੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ 140 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, 140 ਦਾ 35 ਦਾ 140 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਝਾੜੂ? ਇਹ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜੀ। 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਝਾੜੂ? 35 ਤੋਂ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਖੂਨ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਓ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਚਾਚੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੈਸੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਵਕਦੇ ਅੱਛਾ ਦੇ ਸੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਵਰ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਕਵਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੂਨ ਸਿਰਫ ਕਬਰ 'ਚ। ਕਵਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੜਕ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨੱਪੇਗਾ? ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ, ਪੈਸੇ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਪੀਚੇਗਾ ਨਾ। ਕਫਨ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਬਰ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਪਤਾ ਮੁਰਦਾ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਤਪਣੀਦਾ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ। ਆਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਦਫਨੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 30 ਤੋਂ 35,000 ਅੱਪੜ ਗਿਆ। 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਨੱਪੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ? ਮਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਚੀ ਕਬਰ ਦਾ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵੀ 700 ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੱਪੇਗਾ ਜਾਂ ਨਾਰੇ 'ਚ ਰੋੜ ਦੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਕਫਨ ਖਰੀਦਣ ਜੋਗੇ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜੋਗੇ, ਕਬਰ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾੜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਅਦਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ रोटी दे दें बस। मेरी सारी चीजें वो हैं जो कि गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। यहाँ पर आपको एक बंदे से मैं मिलवाता हूँ। ये बंदे ओवरसीज हैं भाईजान, सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल होते हैं कि उस इमरान खान के चाहने वाले, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के चाहने वाले बड़ा कोट करते हैं उनको। वो कहते हैं जी ये देखें महंगाई क्या है। फिर जर्मनी में एक बंदा खड़ा होकर ना दिखा रहा है कि देखो पेट्रोल कितने रुपए लीटर है। पहले ये सब्जी वाले भाईजान देख लें, इस तरह के लोगों की वजह से ना हुकूमतों के दिमाग खराब हो जाते हैं। वो कहते हैं महंगाई कितनी, वो भाई वो जर्मनी के हालात दस रहा है, पाकिस्तानी हालात दसते साडा चैनल लाओ, ताड़ी मेहरबानी, या कोई लोकल चैनल देख लो तो नहीं यकीन आता तो अपने किसी वजीर को पूछ लो, पहले जाकर देखें। वो बाहर वाले भाई हमें बताते हैं कहानी क्या सुनाते हैं, वो देखें उतनी देर में हैरी पॉटर वाले झारू पे किधर गया स्टाइल है गया जरा उड़िए सी देते, हम इस पे उड़ने की कोशिश करते हैं। 100 रुपए की सब्जी रही ना पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਨੀਆ फ्री मिल जाता ਸਾਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ। 160 रुपए का धनिया जो है महंगाई है जी पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਜੇ ਗਾਜਰ ਕੀ ਭਾਅ ਪਾਕਿस्तान 100 रुपए ਧੜੀ, 50 रुपए ਧੜੀ, महंगाई है जी। ਇਹ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਕਿਲੋ ਜੇ? 350 रुपए ਦੀ ਕਿਲੋ। ਦੁਆਣਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ? 100 रुपए ਦਾ, 200 रुपए ਦਾ, 350 रुपए ਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਇੱਥੇ 1200 रुपए ਦਾ। ਇਹ ਅਦਰਕ ਦੀ ਅਦਰਕ 900 रुपए किलो। ਇਹ ਜੇ ਆਲੂ 600 रुपए किलो। इमरान खान ने महंगाई कर छड़ी है। I love my country, पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब हमारे पास यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि जब आप टीवी लगाएं तो दो तरह के बयान आपको मिलते हैं। एक तो बिल्कुल ही उलट साइड है जिसमें आपको कहा जाता है कि दुनिया जो सी है वो फना होने वाली है और परेशानी बहुत ज़्यादा है, और एक दूसरी साइड है जो हुकूमती साइड है, वहाँ से ऐसा लगता है कि शायद हम पाकिस्तान जन्नत बनाने के करीब पहुँच गए हैं। यहाँ पर आप मुँह से बात निकालेंगे वहाँ वो पूरी हो जाएगी, यानी कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हैं। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। मेरे साथ कुछ भाई खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम कैसे हैं जी, आप? अल्लाह का शुक्र। तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह का शुक्र। जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी बेहतरीन गुजर रही है। हुकूमती तर्ज पे गुजर रही है या अवामी तर्ज पे गुजर ना हुकूमती पर और ना ही यानी अवामी साइड पर। बेसिकली अगर आप पूछे ना, हाँ जी, तो किसी पार्टी या किसी से मैं अपने अकल के मुताबिक बिल्कुल यानी मुख्तलिफ बोलूँगा साइड जी बिल्कुल ठीक है। अगर जिन पदेन अखबार या आप हालात वगैरह देखे ना जी जी तो पढ़े तो पता चलता हम मरने वाले हैं, हाँ, मरने के करीब हैं। मैंने वही लेकिन जब अल्लाह कहता है कि बंदे के पैदा होने से पहले मैं उसका रिज्क दे देता हूँ, तो हमें इतना हौसला होता है ना इमरान खान पर ना किसी और पर कि अल्लाह रिज्क देगा। हालात टफ हैं, ये तो कोई शक वाली बात है अच्छा नहीं। चलें, बहैसियत एक शहरी के आपको अपने जो हुक्मरान हैं उनकी पॉलिसियों से इत्तेफाक करते हैं आपके वो अच्छी सिमत में जा रहे हैं? अगर तो जो वो बयान करते हैं हाँ
उनके साथ मुकम्मल हूँ, लेकिन अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी और जन्नत भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। फर्द ने कह बिया ला ला तो क्या हासिल, नंगा हो दिल मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इसका मतलब कहने से कुछ भी नहीं है, कहने से बात नहीं बनती, प्रैक्टिकल करने से। प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे। हाँ, प्रैक्टिकल किधर हो रहा है? आप देखते नहीं है किधर आटा रोज टमाटर किधर जा रहे हैं, किधर जा रही है ये आटे का जो चेंज आया ये जिंदगी पे असर डालता है? जैसे मैं देख रहा था देखें जी, दुनियावी लिहाज से तो हम आटा खा कर ही जीते हैं ना। हाँ। ये मुतवस्त तबके के जो लोग हैं ये फ्रूट या दूध पर तो नहीं होते ना, ये आटा खा कर जीते हैं। तो पेस्ट्री भी नहीं खाते और केक भी नहीं खाते। बिल्कुल, बड़ी टेंशन होती है। जो पहले मैंने शुरू में आपको स्टार्ट में बताई है कि अल्लाह पर भरोसा है, जितना हमारा रिस्क है हम खाकर मरेंगे। पूरी ताकत इसके पास है। अभी पकड़ नवासी को जाकर पकड़े, हमें नवासी से गया, हमें तो अपना मुल्क चाहिए। बातें ज्यादा है, गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार पे डाउट है। अरब के बाद जो हमारा IMF का प्रोग्राम हुआ उससे कीमतें बढ़ी। हम फूड सब्सिडी देंगे, आटे पे देंगे, चीनी पे देंगे, घी पे देंगे और दालों पे देंगे। अरे यहाँ पर हम रेस कोर्स में मौजूद हैं। पहले तो मैंने कहा था आपको एम्स्टरडेम में, लेकिन ये रेस कोर्स है, सच्चाई दसनी चाहिए, हमें ख्याली पुलाव नहीं बनाने चाहिए, अहमकों की जन्नत में नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी अरेंज किया हुआ, उन्होंने एक मैच टूर्नामेंट अरेंज किया हुआ है। तो हमारे साथ कुछ कृष्ण कम्युनिटी के लोग मौजूद हैं, हमारे भाई, उनसे बात करते हैं। क्या हाल है आपका? हाल ठीक है, शुक्र है खुदा का जी। ये जो हालात चेंज हुए हैं पिछले साल की निस्बत या उससे पिछले साल की निस्बत, आप ज़िंदगी में कोई चेंज देखते हैं अपनी? अभी तक तो मैंने तो कुछ नहीं देखा। 2020 में वही मसला आया है और 21 में 2018 में ठीक थे आप? नहीं, उस वक्त भी इनकी आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, नून लीग की चल रही थी। हाँ। और इमरान खान की चल रही थी। नाम क्या आपका? मेरा नाम एल्डर इलियास है। एल्डर इलियास, आपको ज़िंदगी में चेंज आया आपका कोई? जैसे ज़िंदगी में चेंज मैं ऐसा पूछना चाह रहा हूँ कि हालात बेहतर हो गए, आप साइकिल पे थे, आप बाइक पे आ गए, बाइक से गाड़ी पे चले गए, या आपने ज़िंदगी में तरक्की की है इन 3 सालों के अंदर कोई? कुछ भी नहीं, तरक्की तो कुछ नहीं की। अभी तो बच्चों ने FA BA कर लिया हुआ है। अच्छा। जॉब नहीं मिल रही बच्चों को। ओहो। पिछले दिनों में पता चला कि एक बच्चा वो मैनेजर की उसको जगह मिली और उन्होंने कहा जी कोरोना आ गया, फिर उसको फ्री कर दिया, फारग। तो उसमें भी फारग हो गए वो बच्चा ना, उन्होंने कहा देता कि कहा ये हमारे पास वो अब ना कोरोना आ गया, हम बंद करने लगे ये शॉप। ओहो, ये तो बड़ा जुल्म हो गया, उसके साथ जुल्म हो गया। अच्छा ये बताएं कि आप जो कमाते हैं पैसे, हाँ जी, उसके अंदर आपकी पूरी पड़ रही है जैसे पहले पड़ती थी? कोई चेंज आया है? ज्यादा हो गए हैं, कम हो गए हैं? नहीं, मैं और मेरी मिसेज साथ, हम दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हैं। अच्छा। तो कुछ बस गुजारा चल रहा है। ये सेविंग कर पाते हैं? नहीं, बड़ी मुश्किल से हम अपनी रोज की रोटी खा लें, बड़ी बात है। सेविंग नहीं कर पाते? मुश्किल है। पॉलिसीज के अंदर क्या देखते हैं आप? ये किसका कसूर है? ये क्या लगता है आपको? कसूर ये हमारी हुकूमत पाकिस्तान का। इमरान खान साहब कहते हैं कसूर पिछलों का है, आप भी यही मानते हैं कि पिछलों का कसूर है? नहीं, ये देखा जाए तो जो पिछली हुकूमतों ने भी इस तरह वो करप्शन करते आए। अब इसके पास आई है हुकूमत, अब वो कोरोना ही नहीं मसला छोड़ रहा, मसला ही मसला आ रहा है। बेचारा परेशान हो गया है ना। नाज़रीन, ये जब आप तारीख थोड़ी सी टटोलें ना, आप अपने ज़हन को फ्रेश करें, स्पेशली वो नौजवान जो यूथ में से हैं, तो यूथ के तमाम लड़के लड़कियां जो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं हमारे प्यारे वज़ीर आज़म से, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि तारीख यूट्यूब जो बहुत ज़्यादा देखते हैं यूट्यूब पे, सिर्फ अपने पसंद के बयानात मत सुना करें, ज़रा तारीख में जाके देखें कि इससे पहले जरदारी साहब क्या कहा करते थे, जरदारी साहब के दौर में क्या बातें हुआ करती थी, जब उनके दौर में मसले आते थे तो वो क्या कहते थे, फिर नवाज शरीफ साहब क्या कहते थे, और अब इमरान खान साहब हुकूमत में क्या कह रहे हैं। एक फ़िक्रा, एक लाइन कॉन्स्टेंट है, वो ये है कि हमें ये तमाम मसाइल विरासत में मिले हैं। ये जो परेशानियां हैं, तकलीफ हैं, ये पिछली हुकूमत की दी हुई हैं, ये उसकी कारकर्दगी है जो हम भुगत रहे हैं, हमें ये भुगतना पड़ेगा। तो इन लाइनों से अगर अभी भी आप बेवकूफ़ बन रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता, आप उसका इलाज कराएं, उसके लिए इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये बीमारी इसी तरह चलती रही तो ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगी और आपकी आने वाली नस्लों के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। हकीकत पसंद बनना चाहिए इंसान को, हकीकत से प्यार करना चाहिए और हकीकत से आंखें मिलानी चाहिए, आंखें चुरा नहीं लेनी चाहिए। अरब के बाद जो हमारा IMF का प्रोग्राम हुआ उससे कीमतें बढ़ी। आपकी मुख्तलिफ लोगों से बात करवा रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जो जन्नत है जिसमें हम रह रहे हैं, कहीं वो अहमकों की तो नहीं है, तो यही इसकी तलाश में निकले हुए हैं।
तो हमारे साथ कुछ मौजूद हैं लोग, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप भाईजान? शुक्र है बाजी आप ठीक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? क्या आप भाईजान ला चाह रहे हैं? वो मैं देख रहा था टीवी पे वो कहते हैं हमारे वज़ीर जो उनसे हैं फवाद चौधरी साहब, वो कहते हैं सारे 75% लोगों ने तरक्की की है, 75% लोग जो उनसे हैं वो उनको फ़ायदा हुआ है, उन्होंने इस दौरे हुकूमत में बहुत तरक्की की है। सिर्फ 25% वो हैं जो तनख्वाह याफ्ता लोग हैं, तनख्वाहदार लोग हैं, उनको सिर्फ नुकसान हुआ है। बाकी लोग तो ऐसे ही कहते हैं कि महंगाई हो गई है, मुश्किल हालात हैं। वाकई ऐसे है? पहले तो ये बात है कि मैं इस बंदे को ना ये समझता हूँ कि ये बंदा अगर आवाम में आ जाए ना तो इसको आगे पता चले कि महंगाई चीज़ किसको कहते हैं ना। इन आपका मतलब ये आम लोगों में नहीं फिरते हमारे प्राइम मिनिस्टर? गाँव पर टीवियों में नज़र आते हैं और सिर्फ इन्होंने झूठ और सिर्फ झूठ, इसके अलावा इनको काम ही कुछ नहीं है। अब कौन से बंदे हैं जो कह रहे हैं कि जी महंगाई जो है ना बिल्कुल मुल्क सही चल रहा है? सो इन अपने इनके वजीरों के अलावा कोई कह रहा है बंदा? बिल्कुल ठीक है। पूरा पाकिस्तान जहाँ चले जाएं इन लोगों ने लोगों का जीना दुर्भर कर दिया, इस तरह कर दिया है कि बस लोग ये कहते हैं कि खुदारा यहाँ तो हम लोगों की जान ले लो या इनसे जान छुड़ो। कभी किसी दौर में आप पसंद करते थे इमरान खान साहब? इमरान को कभी पसंद करते थे हाँ। लेकिन वो एज ए वज़ीर-ए-आज़म पसंद नहीं आया आपको? असल में हमने ये सोचा था कि ये कह रहे हैं कि तब्दीली आएगी और रियासत मदीना का मतलब है कि हम शरीयत और दीन के मुताबिक चलेंगे। बिल्कुल ठीक है। इसने सबसे पहले आके वादे किए जी इस मुल्क में बहुत से कारोबार आएगा और तरक्की होगी, इंशाल्लाह ये हमारे तरक्की करने का साल है। फिर इसके अलावा हम लोग जो है ना यानी कि ऐसे पाकिस्तान को तलीम का निज़ाम ऐसे कर देंगे कि अमीर और गरीब के बच्चे एक ही जगह पे, सिर्फ ये है कि इसने ज़िंदगी में थोड़ा सा काम किया है कि जो अभी इसने निसाब का कहा है। आपको पसंद आई वो बात? पसंद आई, लेकिन 3 सालों में एक काम किया इसने। नहीं लेकिन अभी तक वो लागू तो नहीं ना। नहीं बाबाजी, वो इस तरह है कि वो यकसा निसाब का मतलब ये नहीं है कि जो आपका बच्चा भी वही किताब पढ़ेगा जो एचएसएन में या कहीं और पढ़ेगा। एचएसएन ने तो नहीं कर दिया ना, उन्होंने कहा हमने नहीं पढ़ाना जो आपका निसाब है। वो ऐसे है कि जो हुकूमत की मंजूर शुदा किताबें होंगी वो अपनी अपनी मर्जी की सब ले लेंगे। वो यकसा निसाब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बस फिर इसका वो भी वादा समझ लेके पूरा नहीं हुआ ना। इसके अलावा इसने हमसे एक वादा किया था कि हम लोग इधर आ गए हैं तो जो गरीब है वो उसको ऊपर लेके आएंगे और अमीर को जो है ना उससे पूरा हिसाब लिया जाएगा। मेरी सारी चीजें वो हैं जो गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए। ये वही बात आ गई, वो मकड़ी के जाले वाली के जो ताकतवर है वो निकल रहा है और वो जो दूसरे वो फंस रहे हैं। अभी हाँ वो अलीमा क्या था ये जंगील तरीन निकल गया। उसने इसको तड़ी लगाई, उसको दिखा दिया कि मेरे बंदे हैं, वो निकल गया। हम फंस कौन रहा है कि जो इसके सामने यानी कि भी नहीं चल सकता। और इसके अलावा इसने ना तो किसी कानून को ना यानी कि थानों को सही किया। अभी तक थानों का भी वही हाल, आप जाएं थाने में वही यानी कि जो टीवी तो कहानी और दिखाते हैं। वो बाबा इतनी इंसल्ट है शरीफ बंदे की। और जो चालाक और होशियार और बदमाश बंदा है उसको तो कोई मसले नहीं है थाने में जाने के लिए। इमरान अगर चाहता तो आगे इस मुल्क को जो जिस तरह इसने तरक्की के लिए कहा था आगे बाजार में जाके देखे, आए दिन चीनी भी महंगी, घी भी महंगा, आए दिन पेट्रोल भी महंगा, आए दिन बिजली भी महंगी। वो कहता है पिछली हुकूमतों का किया था, आप मानते हैं इसको? पहले तो एक मुझे बात बता दें कि इसने कहा था जी वो पिछली हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत ये यानी कि ऐसे कर रही है कि ये रोज़ाना अरब रुपये का जो है ना चोरी करती है। अच्छा ये ईमानदार लोग आगे वो रुक गई। अब वो तो 3 साल से वो रुकी हुई है। फिर इसके ईमानदार बंदे जो यानी कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो पैसे किस जगह पे लग रहे हैं? हमारी आवाम को कम से कम उसकी सहूलत तो मिलती है। सहूलत ये मिलती कि चलो पेट्रोल सस्ता होता है, बिजली सस्ती होती है, चोरी का माल बचता तो सही। वो बच गया बकोल के। फिर अभी इसके पास है सब कुछ, पूरी ताकत इसके पास है। अभी पकड़ नवाशी को जाकर पकड़े, हमें नवाशी से गया, हमें तो अपना मुल्क चाहिए। इस मुल्क के लिए फैसले चाहिए ना, इस मुल्क के लिए कोई फैसले करते हैं ना। अभी टीम चली गई न्यूजीलैंड की, इनकी पावर क्या है? इसने जाके स्पीच कर देनी है असम्बली में जाके और मिलना कुछ भी नहीं है, बस बात करके आके मदद तब है जब बात करे, फिर उसका असर भी हमें नजर आए। बातें ज्यादा है, गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार पे डाउट है। कुछ भी नहीं है। इसको भी लाने वाले ऊपर बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ को भी लाने वाले ऊपर बैठे हुए थे। तो खुदारा कोई ऐसा बंदा आ जाए जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए सोचे। बिल्कुल ठीक है। और ऊपर वालों को ये सोचना चाहिए कि ऊपर वालों से ऊपर भी कोई बैठा हुआ है और वो सारा कुछ देख रहा है। वो फैसला करेगा, बिल्कुल करेगा, इंशाल्लाह फैसला करेगा और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। आपकी और लोगों से बात करवाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। रक्षा ड्राइवरां नूं, मजदूरां नूं, किसानां नूं ਉਹ इमरान खान चाहिए ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ
ईरानी, अगर बात अवाम की हो रही है तो हम अवामी रक्षा यूनियन को कैसे भूल सकते हैं। मजीद गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम की नोयत कुछ ऐसी है, हम आपको हकीकतें बता रहे हैं। तो यूरोप में रक्षा यूनियन जो सी है वो यहाँ पर चल रही है। यूरोप की रक्षा यूनियन होवे तो की होवे ਉਹਦੇ ਚ? Watson, no problem, everything body and just like. Everything good? हाँ जी। Yes commando? हाँ जी। Yes commando? Please don't disturb me, touch me, tell computer. ठीक है, कर देगी बेने साढ़े नाल। Watson साहब ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਚ ਨਾ ਆਹੋ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ? नहीं नहीं, कोई महंगाई नहीं। कोई महंगाई नहीं। देखें ये एनवायरनमेंट देखें, खूबसूरत माशाल्लाह। और यूरोप में 400-450 रुपए वाली सीमेंट की बोरी 700 रुपए में। बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं। यूरोप, कोई बात नहीं, यूरोप है। 80 रुपए में प्याज है, कोई मसला नहीं। कौन कहता है महंगाई है? 124 ਦਾ तेल की फर्क पैंदा? कोई फर्क नहीं सर। 110 रुपए का अपना किलो चीनी की कोई फर्क कुछ भी नहीं सर। 90 रुपए वाला सरिया 190 रुपए किलो मिल रहा है। एक महंगाई है, इस वास्ते मैं कहना नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग बॉडी जस्ट। यस कमांडो। हाँ जी, यस कमांडो होया पिया साहब। गुजारिश हैगी है, ये तो झूठो झूठ 44 ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਝੂਠ 44। हाँ जी, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਯੂਰਪ ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗੈਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਗਾੜਿਆ ਕੀ? ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਏ? ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 450 ਦੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ, ਉਹ ਦੀਨਦਾਰਾ ਤੇਰੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ 700 ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ 90 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰੀਆ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬੂਮ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 190 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰੀਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ 8000 ਰੁਪਏ ਦਾ 1000 ਇੱਟ ਸੀ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ। ਮੈਂ ਕੋ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਤੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਨਆਰਓ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਖਮੋਸ਼। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ? ਇਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ। ਗਰੀਬ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, 에ਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਰ 'ਚ 8-8 ਕਨਾਲ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਿਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੰਗਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰਬਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਾ ਆਕਸਫੋਰਡ ਦਾ ਪੜਿਆ, ਰਕਸ਼ੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਕਦੀ। ਉਹ ਨਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਵਜ਼ੀਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਕ ਰਕਸ਼ੇ ਅਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ WhatsApp ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ, ਤੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਤ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇਣ। ਫਿਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਯੂਰਪ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਜਾਲੀ ਯੂਰਪ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੇਸ ਕੋਰਸ ਖੜੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਖੜੇ ਨੇ। ਯੂਰਪ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ ਝੂਠ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਐਨਆਰਓ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਨਆਰਓ ਤੇ ਲੈ ਲੂ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ 3.5 ਸਾਲ ਤੇ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ 1.5 ਸਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਕਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਨਾਰੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਪੜ ਲਓ ਕਰੋਨਾ ਲੈ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਕਰੋਨਾ 'ਚ। ਮੇਰੇ ਕਰੋਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਬ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਤਸਾਬ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਵੀ 110 ਵਿਕ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਵੀ 110 ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਚਿਕਨ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। LPG ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸ਼ੀਆ ਖੁਰਦੋ-ਨੋਸ਼ ਦੀ, कोई ऐसी चीज दी बिल्डिंग मटेरियल दी ऐसी मेडिसिन नहीं की 400% महंगाई हुई। भारत के बाद जो हमारा IMF का प्रोग्राम हुआ उससे कीमतें बढ़ी। हम फूड सब्सिडी देंगे, आटे पे देंगे, चीनी पे देंगे, घी पे देंगे और दालों पे देंगे। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਨ ਸ਼ੌਕਤ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ IMF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਡਿੱਗੀ ਏ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਏ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹ ਤੇ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਨੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਠੀਕ IMF ਨੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੋ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 'ਚ 8 रुपए का यूनिट ओ भाई तू मीरल मोमनी बन के बखाया तो 23 रुपए का यूनिट। नाज़रीन जो मजीद गौरी साहब हैं उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी मैं कहूँगा ये मैं इनसे दोबारा रिक्वेस्ट करूँगा आपको दोबारा बताएं वो जड़ा वजीर ते अगे वजीर आज़म ते पिछे वजीर आहो ओ मैं तुहानू दसना जी सुनने जरा गौर से सुने
बड़ी खूबसूरत गल मेरे को देख के ही, हाँ। बट साहब बड़ी वधिया गल सुना लगा तुम थोड़ा इत्थे हो मैं उधर इमरान खान साहब भला क्यों कहंदे ने या वजीर खजाना कि असी बड़े खुश हाँ, आवाम नूं कोई परेशानी नहीं की ते हर शै ठीक चल रही, लोग इट्टां खरीद रहे हैं, सीमेंट भी खरीद रहा, चीनी भी खरीद रहा, सब्जियां भी खरीद रहा। इन्हां नूं दस्सण वाले गलत ने। वो इस तरीके दे नाल मैं तुहाडे प्रोग्राम 'च पहले भी एक बारी कहा सी कि पंजाबी दा एक पंजाबी दी फिल्मां दे विच ना अगे अगे अंजमन डांस कर रही हुंदी ते पिछे 40-45 मेरे वर्गे ना एवें झोला जिहा पा के करदियां ने, ओह अगे गाना गांदी है सैयन चुत्तो नहीं सैयद चुल पक्कियां, ते पिछे कह लैंदे ने आहो नहीं आहो माही आवेंगा मैं फुल्लां नाल धरती सजावांगा, कहंदी आहो नहीं आहो। अच्छा वो पिछों वो कहंदी पता नहीं मैं कोई डांस वधिया कर रही है, कोई बड़ा वधिया ते मेरी तारीफां हो रही आहो नहीं आहो, और नचदी है, वो बड़ा खुश होंदी है। ते इसे तरीके नाल इमरान खान साहब दे वजीर ते मशीर जिहड़े ने पिछे आहो नहीं आहो वाले हैगे ने, आहो नहीं आहो ते इमरान खान साहब कहने इट्टां भी ठीक ने, सीमेंट भी ठीक है, बजरी भी ठीक है, सब्जियां भी ठीक ने। जेड़ा कहानी सुना रहे हैं ज़ुरई मुल्क 430 रुपया टींडा किलो ते आटा जेड़ा है 80 रुपए 90 रुपये चक्की तो आटा नया होने लगा है। जिशान भाई अब आप मेरी बात देखें, आटा माफिया था, अच्छा चीनी माफिया थी, जो चीज आप जिसको खान साहब ने हाथ डाला वो गायब हो जाती है। अब उन्होंने कहा मैंने महंगाई को दोबारा खुद नोटिस लेना है, आप दोबारा वो नोटिस ना ले, हम सके मेहरबानी कर दे हमारे पर, नोटिस ना ले खान साहब, मेहरबानी कर दे, नोटिस ना लेना, और महंगाई हो जाती है। जिस चीज को आपने चीनी माफिया का नोटिस लिया, चीनी और महंगी होगी, आपने आटा माफिया का नोटिस लिया, आटा महंगा हो गया, आज मिल ही नहीं, नायाब है, आटा ही नहीं है मार्केट में। आपने एलपीजी का नोटिस लिया, एलपीजी मार्केट से गायब हो गई। आपने जिस चीज़ को हाथ डाला, पेट्रोल की कीमतों का आपने इजाफे का नोटिस लिया, और अब पेट्रोल देख लें 123 रुपये हो गया है। 40 रुपये पेट्रोल आपने देना था, 123 रुपये 80 पैसे 20 रुपये वापस कौन देता? आप बात 40 रुपये खान, उस वक्त 65 रुपये पेट्रोल था, खान साहब ने कहा था 40 रुपये करूंगा, आज 140 हो गया, वो 100 भूल गए हैं बीच में शायद। मेरा पैगाम है खान साहब, ओए नाज़रीन ये पैगाम ले लें, उसके बाद सानू ईमानदारी दी गल है, तुहाडी ईमानदारी ते कोई शक नहीं, तुसी हमेशा सच बोलिया, आहो ठीक है, कसम च ईमानदार सामने सच, वेरी गुड, ईमानदार वजीर आज़म है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੈਸ, ਬਿਜਲੀ, चीनी, आटा ब्लैक होवे या महंगा होवे, पेट्रोल महंगा होवे तो वजीर आज़म चोर है। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। खुदा दा ना हम नहीं कह रहे, असी नहीं किया, अच्छा असी कह रहे खान साहब सच कह रहे हैं, खान साहब सच कह रहे हैं, खान साहब सच कह रहे हैं, हम उन्हीं की बातें भूल पा रहे हैं। मजीद गौरी नूं, रक्षा ड्राइवरां नूं, मजदूरां नूं, किसानां नूं ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੈਦੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ। ਹਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ यूरोप में, वाई नॉट, यस कमांडो, यस कमांडो। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਪਪਾਇਤ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਹੁਲੀਆਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੋਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਦਰ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋਟ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ, ਤਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਨੋਟ ਕਿਹਾ, ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਕਸਮ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਫਿਰਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, कोरोना मुक गया, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਾਬਸ਼ਾਂ, महंगाई मुका दियो, महंगाई मुका दियो, बस महंगाई मुका दियो, नहीं तो यकीन मान जाओ ए यूरोप ही साढ़े वास्ते। अरब के बाद जो हमारा IMF का प्रोग्राम हुआ उससे कीमतें बढ़ी। आप भी सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है, हम कौन सा हॉगवर्ड में आ गए हैं। असल में प्रॉब्लम ये है कि ये निम्बस 2000 नहीं है, ये एक झाड़ू है, और मैं हैरी पॉटर नहीं हूँ, मैं ज़ुहैब भट्ट हूँ, और ये एम्स्टरडैम नहीं है, ये लाहौर है। और महंगाई यकीन माने लोगों की पसलियां तोड़ रही है। वो जो होता था ना पहले कि किसी ना किसी तरह हम पूरा कर लेते थे, वाइट कॉलर बंदा किसी ना मांग के, कमेटी डाल के, कुछ ना कुछ करके चीज़ें पूरी कर लेता था, और ऐसा लगता था हालात ठीक चल रहे हैं। अब वो ये भी कर नहीं पा रहा। अगर आपको ऐसा लग रहा है और आपके मशीर वजीर हुकूमत को ये बता रहे हैं कि वो की होया, कोई महंगाई नहीं, दुनिया का चल रही है, गड्डी लै रहे हैं, मोटरसाइकिल लै रहे हैं, आप ये देखें गड्डी जेड़े गड्डी चलाते सन वो किन्ने वड्डियां गड्डियां वेच के छोटी गड्डी लैके ऊबर चलान ते आ गए ने। पॉइंट 1 मोटरसाइकिल विक रही ने, तो किन्ने लोगों ने गड्डियां वेच के मोटरसाइकिल ले लिया क्योंकि उन्हें पेट्रोल पूरा नहीं कर पा रहे। पॉइंट 2 अगर आपकी प्रॉपर्टी में इजाफा हो रहा है तो ये चेक करें कि जिन लोगों ने ज़मीनें बेची हैं कितनी बड़ी ज़मीनें बेच के वो छोटी ज़मीनों पर आए हैं। यानी कि ये तमाम का तमाम एक साइकिल है जो चल रहा है। और ये झाड़ू है,
इससे हम सफाई करते हैं। झाड़ू जो उनसे है वो सफाई करने के लिए होता है, और मैं इस मुआशरे में सफाई करने की नीयत से आपको ये तमाम चीज़ें बता रहा हूँ। अपने ज़हन की सफाई करें और ख़ुद को ये बताएं कि हकीकत क्या है। हकीकत पसंद कौमें, हकीकत पसंद हुक्मरान और हकीकत पसंद लोग तरक्की करते हैं। जो अहमकों की जन्नत में रहते हैं वो बहुत बड़े अहमक होते हैं, तो ख़ुद को अहमक साबित ना करें। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।